Hello students, welcome back to BS The Point. So from today we will start with a new chapter that is chapter number 5, organizing. And in the previous class we have done with the chapter number 4, planning. And after function of planning, manager has to perform another function that is organize. Means after laying down all the plannings and the objective, the next function to be performed by the managers is organizing. It determine what activity and resource, यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया हमें को क्या काम करना है और उसको कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग हमारे को उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो करना होता है। उसमें हम डिटरमाइन करते हैं क्या एक्टिविटी रिसोर्सेज हमारे को चाहिए, डिसाइड हु विल डू इन दैट पर्टिकुलर टास्क, वो कौन काम करेगा एंड वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। हमारे को ये सभी चीजें उस एक्टिविटी को करने के लिए डिसाइड करनी होती है। ऑर्गेनाइजिंग इज एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस factors of production and is concerned with establishing relationship among जॉब सेक्शन डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशन, इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is a process of identifying and grouping the work to be performed, defining uh, uh, and delegating responsibility and authority, establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. यानी कि group identify और grouping the work identify करना, आपको उसको group करना, delegate करना लोगों की responsibility authority power देना और लोगों को काम करने के लिए relationship, उनसे काम करवाने के लिए, काम निकलवाने के लिए उनसे उनके उनकी relationship establish करना उनसे। ठीक है। Now what are the steps involved in process of organizing? First step that we have is identification and division of work. It involves identification and dividing the total work to be done into specific activities for job. यानी कि first thing you have to do that you have to identify the work. Then you have to divide that total work into small parts. That small parts are known as job. This can also can be asked in the form of MCQ, that the total work is divided into small parts, and what that small parts are called are called jobs in accordance with previously determined plans. By dividing the work, the burden, अब वर्क को डिवाइड करना क्यों है? By dividing the work, you can share the burden of work among the employees. Not only a single employee can do entire work, it has to be done by in the group. Okay, next thing that we have is departmentalization. Departmentalization में क्या है? The second step of organizing is to combine or group the similar or relating jobs. यानी कि similar or relating jobs को combine करना is what you have to do. इसके बाद next thing है similar jobs, यानी कि अब तुमने जो वर्क करा है, डिवाइड इसको जॉब्स में करा है, अब वो सिमिलर जॉब्स को एक साथ एक ग्रुप में करना और कुछ सिमिलर को ग्रुप में डिवाइड कर दें। यानी कि अगर मेरे पास 4 जॉब है ABCD, तो 4 जॉब ABCD में A और C अगर सिमिलर जॉब्स है, यानी कि वो सेल्स पर डिपेंड करते हैं, तो सेल्स वाली एक जगह कर दी, प्रोडक्शन वाली एक जगह रहती, B और A और C इकट्ठा कर दे। दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें हम रिलेटिंग सिमिलर जॉब्स को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं इनटू अ लार्जर यूनिट और एक डिपार्टमेंट फॉर्म कर देते हैं। लाइक मैंने कहा ना, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स वाली एक जगह, प्रोडक्शन वाली एक जगह। दे कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उनके फंक्शन के बेसिस पे भी हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक टू अचीव objective. For example, department may be created for manufacturing, marketing, finance, etc. हम इन सब चीजों के लिए भी ग्रुप डिपार्टमेंट को बना सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट इज डन टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एफर्ट। दिस इज
also very important line, can be asking value based types of question. ठीक है, इसके बाद next step we have, that is first step that we have is assignment of duties. एक बार जब तुमने यहाँ पर अपना वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया, वर्क को डिवाइड कर लिया स्मॉल पार्ट्स में, जॉब्स फॉर्म आउट कर दी, सिमिलर जॉब्स को ग्रुप आउट कर लिया, डिपार्टमेंट फॉर्म हो गए। अच्छा, इससे एक और चीज होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन में, आपके पास एक और चीज आ जाती है, दैट इज स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है। ठीक है, जब तुम सिमिलर जॉब्स को ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हो, सेपरेट आउट कर लेते हो, तो स्पेशलाइजेशन भी प्रमोट होती है। तो ये ऑल्सो यू शुड रिमेम्बर आउट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वी हैव, दैट इज, एक मिनट, नेक्स्ट थर्ड के बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन मीनिंग की फॉर्म करने के बाद आपको तीसरी चीज जो करनी होता है, दैट इज असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटी। अब तुमने ग्रुप भी फॉर्म कर लिए, डिपार्टमेंट्स भी फॉर्म कर लिए, उसके बाद तुम्हारे को क्या करना है, दैट यू हैव टू असाइन योर ड्यूटीज। जब एक बार डिपार्टमेंट फॉर्म हो गए, then is placed under the charge of an individual or department head। यानी कि हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल हेड होता है, एक इंडिविजुअल होता है जो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम डिपार्टमेंटल हेड भी कहते हैं। लाइक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, एक्सेट्रा। जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सब जो जॉब है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है, लाइक ये डिपार्टमेंट है, इसमें जितने भी तुम्हारे मेंबर्स होंगे, हमारे एक मेंबर को जॉब्स एलोकेट होगी, उनकी स्किल्स के बेसिस पे, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उनको जॉब जो है वो एलोकेट होगी। That is what happens in assignment of duty. This fourth point that we have is establishing this reporting relationship. यानी कि allocating work is not only enough, but each individual should also know that who has to report, to whom they have to report. यानी कि किसको report करना, किससे report करना है, that and every employee should know he is accountable for that. It helps in coordinating among the various departments. So this line is also very important, so that should be underlined. इसके बाद हमारे पास importance of organizing की पहली importance है, first benefits of specialization, and organizing every individual is assigned a part of total work, not the whole task। यानी कि एक पूरा काम है, हम उसको अगर एवरी इंडिविजुअल के पास जो जो उसको काम दिया जाता है, वो उसको एक पार्ट दिया जाता है। लाइक ये वाला जो पार्ट है, लेट्स सपोज इट इज डन बाय एम्प्लॉय ए, तो ये ए एम्प्लॉय करता है, इसको पूरा काम नहीं दिया जाता, इसको सिर्फ एक पार्ट of total work दिया जाता है, due to division of work into smaller units and repetitive performance। और जिस वजह अगर और वो उस काम की repetitive यानी कि repeat performance की वजह से उस काम में उनको specialization हो जाती है। Plus, organization promotes specialization, which in turn leads to efficient and speedily performance of tasks। इसके बाद second point आप यहाँ आता है clarity in working relationship with and creating well-defined jobs, and also clarifying the limit of authority and responsibility of each job। यानी कि कितनी इस लाइन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना तुम्हारा अथॉरिटी होगा और तुम्हारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी ये डिसाइड करवाने में हेल्प करता है कि एक बंदे को कितनी अथॉरिटी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, दैट आल्सो हैव बीन being depend upon that। Third is effective administration. It provides a clear description of the job। अगर हमारा ऑर्गेनाइजिंग से हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट होगी वो इफेक्टिव होगी, जिसके थ्रू हमारे पास क्लियर डिस्क्रिप्शन होगा जॉब्स का, कि हमें क्या काम करना, कैसे होगा, और उससे रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज है वो उसमें हेल्प करता है, जिससे हमारी कंफ्यूजन और डुप्लीकेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है। क्लैरिटी अगर होती है वर्किंग रिलेशनशिप में, तो हेल्प्स इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क व्हिच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट दैट वी हैव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर हम प्रॉपरली असाइनमेंट ऑफ जॉब्स पर यानी कि हर बंदे को उसकी सुटेबल स्किल्स एक्सपर्टीज जॉब दे, तो उससे ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है दैट कैन बी अवॉइडेड, और इससे कंफ्यूजन भी कम कर सकते हो और मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड एफर्ट। एफिशिएंसी ही तुम्हारी फर्दर बढ़ेगी इससे। ठीक है,
इसके आप fifth we have that is adaptation of change. इसका मतलब है it allows a business enterprise to adapt itself according to changes in business environment. Organizing say business environment. Business enterprise से अपने आप को adopt कर सकते हैं business environment में because it has to work in an environment keeps on changing. Organizational structure can be modified according to changes. उससे हमारा organizational structure जो है that can be also should be modified. Also me that should be modified. होना ही होना compulsory ही है in order to survive for longer period in the market. इसके बाद भी आप next one that is development of personnel. इसका मतलब क्या होता है? Some organization encourage initiative. Which organization initiative को encourage करते creative thinking on part of employees. तो इससे हर एक individual organization में हर एक individual पर development होगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी और वो और ज़्यादा effectively efficiently काम कर पाएंगे तुम्हारी organization के लिए. 7 point that is expansion and growth. अगर organizing से क्या होता है हमारे growth, diversification, enterprise में जिसे हम ज़्यादा job positions और departments और organization में ला सकते हैं. अब हम organizational structure की बात करें तो meaning of an organizational structure means it seeks to establish relationship among all the persons working in an organization. यानी कि हर एक आदमी जो एक organization में काम कर रहा है उसके बीच में एक relation establish करना, हर एक आदमी को आपस में link करना is what organizational means. Under the organizational structure various posts are created. यानी कि ये एक पूरी अगर organization है तो इस organization में हमारे पास बहुत सारे post हैं. ठीक है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्ट है, डिपार्टमेंटल हेड्स है, यूनिट हेड है, सब है. दैट परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑफ एन एंटरप्राइज. और जो डिफरेंट रिलेशंस अमंग द पर्सन वर्किंग ऑन डिफरेंट पर्संस आर डिटरमाइन. ये स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजर्स की मैनेजर्स को actual काम कैसे करना है and other employees for performing their functions. उनको अपना काम कैसे करना है. इसके बाद आपस है ये important line है तो इसको you should remember out and can be used and learn answers. इसके बाद sit है आपका important गिवे है span of management. बहुत बात CBSE का फेवरेट टॉपिक है इस बात का. So span of management और organization शब्द के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, क्या रिलेशन. हम सबसे पहले समझते हैं span of management क्या होता है. Span of management is actually refers to number of subordinates that can be that can be effectively managed by a superior. यानी कि एक superior कितने लोगों को संभाल सकता है. That is अगर एक ये हमारा सुपीरियर है, सपोज ये हमारा एक सुपीरियर है तो इसके अंदर ये कितने लोगों को संभाल सकता है. 10 लोगों को संभाल सकता है, ये 11-20 लोगों को संभाल सकता है, या ये 5 लोगों को ही संभाल सकता है. तो दैट इज उस जितने भी सबऑर्डिनेट्स के अंदर काम कर रहे हैं नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स उसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव द शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर करता है फिक्स्ड दैट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर. और इससे क्या होता है आया जैसे हम आपको पता है कि स्पैन ऑफ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आई ना that are handled by a superior. That is an easy language. तो एक superior top level होगा, subordinate lower या middle level में से कोई होगा. तो ये लेवल्स को भी डिटरमाइन करता है मैनेजमेंट में. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर and a divisional structure. An organization can be a functional structure and it can be a divisional structure also. A functional structure की मैं बात करूँ तो functional structure are all those structural activities that are grouped and departments are created on the basis of specific functions. यानी कि जो specific functions के लिए हो, like मैंने बोला प्रोडक्शन जो सिर्फ प्रोडक्शन पर
हम क्या बारे में सारी चीजें यहाँ पे देंगी, सेल्स सेल्स के बारे में, फाइनेंस फाइनेंस के बारे में, ये सब आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसमें स्पेसिफिक फंक्शंस हर डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्म करता है। तो आइडेंटिफिकेशन में याद रखना जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज योर फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो आपको याद होना चाहिए जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे बोला, like what all the data related to production of group and the production department, जैसे कि मैंने बोला sales तो sales department, there's another personal marketing department, there is also and development purchasing department, these all are different departments. अब अगर हम फॉर्मल फंक्शनल सेक्टर को ऑप्ट करते हैं, बॉस मैं तो इन दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करना, इधर दिस और इधर दिस। लेकिन अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को ऑप्ट करते तो हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है दैट इज स्पेशलाइजेशन। Better division of labor over work will take place which results in specialization of function, यानी कि and its consequent benefits। यानी कि ये अगर हम अगर हम functional structure को off करते हैं तो हमारे पास better division of work over labor over this is specialization promote होगी। Second point that is coordination is established। जो various departments हैं उनके बीच में coordination होगा, work within the department especially of their respective job, उसके उनके बीच में coordination easier हो जाएगा at departmental level। Third point that is helps in increasing managerial efficiency, यानी कि organization की efficiency को बढ़ाने में help करता है। Manager of one department of performing same time of function again and again which makes them specialize and improve their efficiency। अगर वो एक काम को तुम भी अगर ऑर्गेनाइजिंग को पूरे साल पढ़ते रहो तो आखिर तक तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग पक्का होगा कि नहीं होगा। तो वही बात है, तो तुम ही हमको रिपीट करते रहो तो तुम्हारे को उसमें स्पेशलाइजेशन यानी कि उसकी नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज और उसमें एफिशिएंसी हासिल कर लो। फोर्थ इज मिनिमाइज कॉस्ट, जिसमें कम कॉस्ट हो भी है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो था मिनिमम होता है और लोअर कॉस्ट में तुम्हारा सब काम हो जाता है। एक स्केल के अंदर, इकोनॉमिक स्केल के अंदर सारा काम जाता है। अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को आउट करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ईच डिपार्टमेंटल हेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस, यानी कि यार जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी मर्जी और हर डिपार्टमेंटल हेड यानी कि उस डिपार्टमेंट का जो भी एक हेड हुआ वो अपने विश से अपनी मर्जी से काम करना चाहेगा अपने डिपार्टमेंट में, जिससे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में वेट हो यानी कि रुकावटें आएंगी। हेंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो सफर फॉर दैट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है कम्युनिकेशन हैज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और अगर उसके बीच में अपनी ही मर्जी अड़ी जाएगी तो तुम्हारा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर नहीं, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शन करने के लिए। सेकंड पॉइंट है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। ये डिपार्टमेंट है इसके बीच में लोगों में या आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डिपार्टमेंट क्या ही खास होता रहेगा। तो इसमें यही कहा है एज ऑल द डिपार्टमेंटल वर्क एज पर देयर ओन विश रिजल्ट कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट एक्स एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट, जिससे कोऑर्डिनेशन जो है डिपार्टमेंट में डिफिकल्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट दैट इज and complete development because each employee specialize only small part of full job, यानी कि ये काम इसका सिर्फ एक इतना परसेंट ही एक बंदे को काम करना है, तो इस वजह से पूरा काम इकट्ठा डेवलप करने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे साइज ऑफ बिजनेस इज वेरी लार्ज, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए, एंड जहाँ पे ओनली एंड ओनली वन प्रोडक्ट इज सुटेबल। तो यहाँ पर आपको एक और इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता हो, उसी में आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। और ये कहते बहुत इंपॉर्टेंट है सुटेबिलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन हर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद सेकेंड दिया दैट इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज, पूरी एंटरप्राइज हो मेजर प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना, यानी कि पूरी एक एंटरप्राइज है उसको डिवाइड कर देना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट को बनाते हैं
लाइक इसमें एक प्रोडक्ट नहीं होगा, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे. यू ओनली वन प्रोडक्ट वाला तो फंक्शनल स्ट्रक्चर. और अगर हम डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट लेते हो वी ऑप्ट फॉर रीजनल स्ट्रक्चर. उसमें क्या होगा आपका, आप पे अब जैसा पेन पेंसिल और जैसा आपने यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्मेटिक गारमेंट फुटवेयर स्किन केयर, तो इसमें अपने डिपार्टमेंट्स को इन वे डिवाइड कर दो. अपने अगर डिविजनल स्ट्रक्चर आप ऑप्ट करते हो तो अपने डिपार्टमेंट्स को अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दो. जैसे मेरी कंपनी है वो कॉस्मेटिक्स में बनाते हैं, वो गारमेंट्स में भी काम करते हैं, वो फुटवेयर में भी काम करते हैं, स्किन केयर में भी काम करते हैं. तो अपनी कंपनी को इन चारों डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्ट लाइन्स में डिवाइड कर दो. फिर अब हर प्रोडक्ट लाइन में दैट इज उसको प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करना इस डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है. इसके बाद हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या पहला एडवांटेज आता है, क्विक डिसीजन मेकिंग. डिविजनल मैनेजर कैंडिडेट. अब डिविजनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो हर एक डिपार्टमेंट होता है उसमें एक डिविजनल हेड होता है. क्योंकि हम डिविजनल स्ट्रक्चर अगर फॉलो करें तो हर एक डिपार्टमेंट एक डिविजनल हेड होगा और हर उस डिविजनल हेड के पास उस डिपार्टमेंट से के लिए डिसीजन लेने के लिए पूरी कंप्लीट राइट है, अथॉरिटी है. तो वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, क्विक डिसीजन ले सकता है और अपने डिपार्टमेंट के लिए इफेक्टिव डिसीजन ले सकता है. सेकंड पॉइंट भी आप दैट इज डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असिस्ट, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम इजिली असिस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनप्रॉफिटेबली डिविजन कैन बी क्लोज्ड. थर्ड पॉइंट वी हैव दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड. नए नए डिपार्टमेंट्स को भी हम ऐड कर सकते हैं पुराने डिपार्टमेंट्स को बिना डिस्टर्ब करें. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज दैट वी हैव इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि अब एक डिविजन है, एक डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज दिस इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 20 लोग काम करते, तो 20 का 20 लोग, जैसे सिर्फ एक ऐसा सिंगल बंदा होगा दैट इज ऑन टॉप लेवल, यानी कि जो टॉप पर होगा दैट इज योर डिविजनल हेड. तो अब बाकी के लेफ्ट ओवर जो 19 मेंबर्स है दे आल्सो वांट टू बी एट दिस टॉप लेवल, उनको भी इस पोजीशन पर आना है. तो इसलिए दिस कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं और इस वजह से वो अपनी मर्जी से भी काम कर सकते हैं. जैसे रिसोर्सेज में एलोकेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है. Second is duplicity of functions, यानी कि अगर functions required for all locations, यानी कि सारे planning, organizing, stuff and directing कंट्रोल हर डिपार्टमेंट को करना हुआ, it gives rise to duplicity of efforts, जिससे कभी कभी डुप्लीकेशन भी हो जाता है, तो इससे कॉस्ट हमारी राइज हो जाती है. तो इसलिए ये डिसएडवांटेज हमारे लिए बहुत होता है. सेल्फिश एटीट्यूड, यानी कि एवरी डिवीजन ट्राई टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट 10 की 10 अपने परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे दिखाना चाहेंगे. तो वो उस वक्त कॉस्ट कराने लगता है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कुछ नहीं रहता. बस उनको अपना डिपार्टमेंट है कहने से तुम्हारी कॉस्ट हाई जाए या नहीं, कुछ लोग इफेक्टिवली एफिशिएंसी काम नहीं करते, अपना सेल्फिश एटीट्यूड शो कर देते हैं. ये पॉइंट कैन बी ऑल्सो द, ये मेरा खुद का बनाया पॉइंट है. ठीक है. इसके बाद सुटेबिलिटी की बात करें कि ये कौन सी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफ कर सकती है. तो व्हेन नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट इज मोर देन वन, यानी कि मोर देन वन आपके प्रोडक्ट हो. ठीक है. और जब साइज ऑफ द कंसर्न इज लार्ज इनफ, यानी कि लार्ज साइज ऑफ बिजनेस में हो सकता है. और मेन जो है दैट इज कि तुम्हारी प्रोडक्ट लाइन जो है दैट इज मोर देन वन. ठीक है. प्रोडक्ट लाइन तुम्हारी more than one, एक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होना चाहिए. That all for today. From next class we will do formal organization, informal organization, and get disadvantage, advantage, delegation and decentralization. These all topics. In next part we will almost complete this chapter, and third part will be the MCQ. Voila. So till then, take care and bye bye.